तो हम सारे लोग खुश हुए। वो आरोपी तब तक इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, प्रोटेस्ट पे बैठ गए, सरकार देर करती गई, बाद में वो आरोपी पेंशन की रिलीज हुई। उसके लिए जवाबदार सरकार नहीं है, उसके लिए हमारे प्रतिनिधि जो बैठ गए थे जंतर मंतर पे वो जिम्मेदार थे। उन्होंने हमारे वो आरोपी को लेट कराया और उन्होंने ये You must understand the very basic of one rank, one pension. Why it is required? Reason being, when the service personnel retire, they are always, facing the financial crunch to cope up with their day-to-day requirements. Thinking that the very good concepts came into being that prevailed, and they decided to give. We are very much thankful to this present government, Honorable Prime Minister Saab, to implement this one rank, one pension. But there are disparities which is not being equal at all the times. The first 1 rupee was given, people were very happy. But when this second thing came, we have been deprived of our dues. Reason being, there are 3 anomalies in the last 3 CPCs, that is pay commissions, central pay commissions. From third onwards, they cut short of our requirements, our basics. This prevailed to even 4th and the 5th, 6th subsequently. And today we have been drastically reduced our basics requirement. Now the people from JCOs to honorary commission officers, they have not been given, rather they have been given in negative. In OROP 2s we have been given the less payment, rather what we have been getting that's being minus. Understood? So this is why we have gathered here to give a symbolic support to the ongoing protest at Jantar Mantar in Delhi, to draw the attention of the government, and henceforth with all these people we make an appeal to Honorable Prime Minister and Raksha Mantri ji, please look into the matter. Please do not deprive us from our dues. Would be appreciated if you do this. We are always there with you. We have no complaint whatsoever, but definitely we need our presentations in forthcoming such requirement. Understood? Also, I will say the MSP, military service pay, it's a hardship allowance. Wherever we people are the sufferers. So, despite having that MSP getting equal to officers, we recommend that everybody, right from the Sipai onwards till Lieutenant General, everybody must get that, because it's a hardship allowance. Hardship is for one and everybody in defense. So I would appreciate, please convey this report to Honorable Prime Minister. We will be very much thankful to you. And with this I conclude my distinct. ये जब वो ज्वाइन करते हैं, फौजी एक टर्म के लिए आता है 15 साल 20 साल, जब वो अपना टर्म कंप्लीट करके निकलता है तो उसकी ड्यूटी खत्म, वो रिलीज होता है फौज से। तो ऐसे में ये कह देना कि प्री मेचर रिटायरमेंट के एम्बिट में फौजी आता है, फौजी जवान आता है, ये सरासर गलत है। सरकार को फौजी जवानों को प्री मेचर क्लाउज के एम्बिट से हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। दैट्स इट। सरकार इस पर पूरा गौर करे, समझे। फौजी जवान 97% है 61 में संख्या का, और हम सब मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के नीतियों का समर्थन करते हैं, मोदी जी के साथ डट के खड़े हैं। ज़रूरत है कि वो हमारी बातों को सुने, क्योंकि हमारे और सरकार के बीच में हमारे रिटायर्ड फौजी अधिकारी एक दीवार बन के खड़ी हो गए हैं, हमारी बात पहुंचने ही नहीं देते, जिससे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ विषमता अपनाई जा रही है, अत्याचार हो रहा है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से हाथ जोड़ करके मोदी जी से कहते हैं कि सर हमारी बातों को सुनिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से कहते हैं हमारी बातों को सुनिए। हम लोग बड़े ही निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम सब आपके साथ हैं, तो हमारी बात सुनिए आप। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको पता होगा कि जंतर मंतर पर OROP के विपक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे असमानताएं हैं। जो भाई हमारे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनके समर्थन में आज देश के कोने कोने से समर्थन में उसके खड़े हैं हम लोग। और 1971 की लड़ाई के बाद में जवानों का पेंशन 70% से ऊपर हुआ करता था।
स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम जवानों के लिए OROP लेके आएंगे, लेकिन ये अधिकारी वर्ग जो कमीशन ऑफिसर हैं ये हमारे साथ छल किया, हमारे साथ धोखा किया है, हमारे पेट और पीठ दोनों पे छुरा भोंका है, हमें मजबूर किया है इस रोड पर आकर के हल्ला बोल करने के लिए। हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। सर्विस में तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सैनिक रिटायर होने के बावजूद भी ये हमारा शोषण कर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब जागे हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। OROP इक्वल देना चाहिए सबको। कैलकुलेशन फैक्टर 2.57, 2.61, 2.81 ये क्या है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा दिया इन ऑफिसरों ने, ताकि हम लोग जो OROP है कि PBORs जो हैं वो बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाए। क्या यही इंसानियत है इनकी? मैं अपील करता हूँ बहुत सारे हमारे सरकार से, रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी दिलेरी का काम किया था कि उन्होंने शब्दों में उन्होंने कहा कि हम जवानों और भूतपूर्व सैनिकों को OROP देंगे। हम सब ने उनका साथ दिया था। मैं नमन करता हूँ, यहाँ से मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन ये जो विसंगतियाँ आई हैं, ये कमीशन ऑफिसर के रोड़े बनने के कारण, इसको सरकार हमारी मांगों को सुने और उसे सुलझाने का कष्ट करे और OROP सबको बराबर देने का कष्ट करे। यही हमारी मांग है। और मैं एक चीज़ मैं आज अपने दोस्तों से, महिलाओं से, वीर नारियों से अपील की है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम मजबूरन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे भी जाने से नहीं हिचकिचाएंगे और आने वाले दिनों में देश के कोने कोने में हम हंगर स्ट्राइक पे लगे रहेंगे, जाएंगे। अरे हम तो हमेशा कुर्बानी देते हैं। रिटायर होने के बाद में समाज के साथ, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, हर के साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग समाज में सामाजिकता और व्यवहारिकता। OROP प्रोटेस्ट रैली था ये दिल्ली में आज 12 मार्च को जंतर मंतर पे राष्ट्रव्यापी OROP प्रोटेस्ट हो रहा है अपनी मांगों को लेकर। तो उन्हीं के समर्थन में, चूंकि हर सैनिक वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए हमने उनके समर्थन में आज यहाँ रखा है। वॉइस ऑफ एक सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह की अगुवाई में बहुत अच्छा वो लोग अपनी बातें सरकार तक पहुँचा रहे हैं। हम उनके समर्थन में यहाँ पे आज खड़े हैं। आज हमारी मुख्यतः पाँच मांगे हैं सरकार से, और वो भी विनम्रतापूर्वक कि ये मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने चिर प्रतीक्षित इतने सालों बाद हमें OROP दिया। हम उनका नमन करते हैं, सरकार का नमन करते हैं। हमारी 5 छोटी मोटी मांगे हैं, सरकार उसको समझे और उस पर गौर करे। और वो है केवल असमानता का और विषमता की बात। उन्होंने हमें डिफरेंसेस पे लाके खड़ा कर दिया, उस डिफरेंसेस को हटाए। जैसे 5 मुख्य बिंदु हैं। एक है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनकी सभाओं में नहीं होते। हम जवानों के प्रतिनिधि सारी सभाओं में होने चाहिए जो हमारा पक्ष उन तक रख सके। इसलिए सरकार से मांग है हमारी और गुजारिश है कि हमारे लोगों को अपने अंदर सभाओं में लें। दूसरी बात है, अगर लेते तो ये विषमता आती है। हमारी दूसरी हमारी मांग है कि OROP 2 जो अभी टेबल आया है, उसमें जितना भी सरकार के पास बजट है वो सबको एक प्रोपोर्शन में सबको बढ़ोतरी दे, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। अगर 3% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है तो सबको बढ़ाए। तीसरी हमारी मांग है जो हमारे पेंशन को इफेक्ट करती है, वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सरकार ने किसी को 2.57 दिया, किसी को अधिकारियों को 2.81 दिया। आपके पास जितना ही बजट है आप सबको इक्वल मल्टीप्लिकेशन से आप सबको दें। ये हमारी तीसरी मांग। चौथी मांग है हमारी कि इक्वल MSP मिलिट्री सर्विसेज पे हार्डशिप के लिए होता है। जो सारे मिलिट्री पर्सनल इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, जवान, सब मिलिट्री हार्डशिप को फेस करते हैं, इसलिए वो MSP इक्वल हो। एक मांग, दूसरी मांग है हमारी इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन। जब कोई फौजी जवान और फौजी अधिकारी जब डिसेबल्ड होता है, जब माइंस ब्लास्ट में दोनों के पांव चले जाते हैं, तो डिसेबिलिटी पेंशन एक होनी चाहिए, क्योंकि एक का सोने का और एक का लकड़ी का टांग नहीं होता। दोनों को डिसेबिलिटी पेंशन इक्वल मिले। और ये इसके साथ साथ ये OROP 2 जो आया है टेबल, उसको रिवाइज करें। एंड एक सबसे बड़ा क्लाउज है प्री मेच्योर रिटायरमेंट का। अधिकारियों को 58 से 60 साल की नौकरी पक्की होती है जब वो ज्वाइन करते हैं। फौजी एक टर्म के लिए आता है 15 साल 20 साल,
जब वो अपना टर्म कंप्लीट करके निकलता है तो उसकी ड्यूटी खत्म, वो रिलीज होता है फौज से। तो ऐसे में ये कह देना कि प्री मेचर रिटायरमेंट के एम्बिट में फौजी आता है, फौजी जवान आता है, ये सामाजिकता और व्यवहारिकता बनाए रखते हैं। कितने परसेंट अधिकारी हैं जो कि समाज के साथ आकर के खुल करके हमारी समस्याओं के साथ जीते हैं या तो उसे निपटाने की कोशिश करते हैं? 0%। ये सबको पता है। मैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से अपील करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर वेटरन्स, वीर नारीज, कि इसको ध्यानपूर्वक देखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूं मैं, ये AIESL जो कि जनरल ASL के इनके जितने भी सदस्य हैं, हम इनको नहीं मानते हैं। जो PVR इनको फॉलो कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि AISL से आप नाता तोड़ लें। ये हमारा कभी भी हक अच्छा नहीं चाहेंगे ये अधिकारी वर्ग। और हमारे देश में जगह जगह एरियाज वाइज पे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम दूर दूर की सफरें करके इकट्ठा हो सके, इसलिए अलग अलग कस्बों में, जिलों में, डिवीजनों में, मंडलों में ये आयोजन जो, ये विरोध जो है वो चलता रहेगा। और मजबूरन हमें अपने जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, तो हम आमरण अनशन करके जान की कुर्बानी देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये इक्वल सब चीज़ लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो अभी गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ वेटरन सोल्जर्स और सबके लिए दिए हैं, जो OROP-2 है, उसमें सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर हुआ क्या है, जैसे जैसे सर्कुलर बाहर आए उससे हमें देखने को मिला है कि जो 95% अमाउंट है, 20,000 करोड़ जो है, वो तो ऑफिसर्स लोगों को मिल गया, जिनकी गिनती सिर्फ 3% है। तो हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो डिसीजन हो गया है, जो सर्कुलर बन गए हैं, आप उनके ऊपर फिर से सोचिए और इक्वल आप सबको दीजिए। आप जितना ऑफिसर्स को बढ़ोतरी दे रहे हैं उतनी बढ़ोतरी आप जवानों को भी दीजिए, क्योंकि जब सर्विस में हम लोग रहते हैं तो हमारी लाइफ उनसे ज़्यादा कठिन होती है। तो रिटायर होने के बाद जो तकलीफ़ें हम देख रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये मीटिंग था, उसका एक ही उद्देश्य था कि जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले, जितना भी फंड्स, जितना गवर्नमेंट के पास फंड्स है, हमारा कोई ज़्यादा मांग नहीं है, जितना फंड्स आप देते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें परसेंटेज वाइज। हमारे जो फौजी वेटरन्स हैं वो 97% है, तो जो फंड्स है 97% फंड जवानों को मिलना चाहिए, 3% फंड ऑफिसर्स को मिलना चाहिए। थैंक यू। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग हम सबके प्रतिनिधि हैं, हमारा उन्होंने कुछ भी भला नहीं किया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय वेटरन्स। थैंक यू।